Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Today we will explore the facts about the entitled theme Significance of Measuring IQ. As in previous lecture, we have already discussed what is IQ. In today's lecture, our focus is on importance. I mean to say you significance of IQ. हमें क्यों जरूरी है to measure the IQ of an individual? As we know that an IQ test is an assessment that measures a range of cognitive abilities such as thinking, logic, abstract reasoning, learning ability, and working memory capacity. With the help of IQ tests, we try to measure the cognitive abilities or mental faculties of an individual. Dear students, mental faculties basically includes thinking, reasoning, logic, sharp memory possessed by an individual. और IQ टेस्ट से हम हर कोई कॉग्निटिव एबिलिटी एक इंडिविजुअल की मेजर कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, IQ टेस्ट सिर्फ इसलिए डेवलप नहीं किए गए हैं टू नो who is more intelligent and who is less intelligent. Apart from it, IQ tests has having the broader applicability in our day-to-day life. Now in today's lecture, we will here describe the significance of measuring IQ with the help of various points. Point number 1. The IQ tests can help identify students studying in a school or college who possesses learning disabilities and requires special help. Dear students, as we know that education is the birthright or fundamental right of every individual. हमें हर एक इंडिविजुअल को इन द स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में डालना है. We cannot neglect the education of any individual. But it is not possible that to provide the education of any individual without knowing his or her IQ. Education is the birthright, but we are providing the education, keeping in view the capacities and capabilities of an individual. जिस इंडिविजुअल में जितनी कैपेसिटी है, आई मीन टू से यू जिस लर्नर में जितनी मेंटल कैपेसिटी है, मेंटल फैकल्टीज डेवलप्ड है, उसी प्रकार से हम उसे एजुकेशन देते हैं. वी एजुकेट every learner as per one's own capacities and capabilities. So with the help of IQ tests, we can know the mental abilities and how much mental abilities are developed in every learner. IQ test से हमें ये भी पता चल जाएगा various disabilities possessed by the individuals. यानी कि IQ टेस्ट्स की सिग्निफिकेंस ये है, जो भी लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनकी डिसेबिलिटीज के बारे में IQ टेस्ट से हम पता कर सकते हैं. एंड एज पर द IQ we will make the appropriate educational provisions
for every child, whether the child is learning disabled or the child is normal or gifted. Number second, the IQ tests are often used by companies and governments while hiring individuals to work for them. IQ tests help us to measure critical thinking, learning ability, and problem solving, and also measure analytical, creative, and practical intelligence of an individual who will work in the industry. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आईक्यू टेस्टिंग की ब्रॉडर एप्लीकेबिलिटी है. शायद ही कोई ऐसा फील्ड है जहां पर हमें आईक्यू टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. Dear students, if we will look through the prism of any company or industry, इंडस्ट्री में इंडिविजुअल्स को हायर करने के लिए, एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करने के लिए, या कंपनी में इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें आईक्यू टेस्ट्स कंडक्ट करने पड़ते हैं. जो इंडस्ट्रियल ओनर्स है उन्हें आईक्यू टेस्ट्स कंडक्ट करने पड़ते हैं टू सिलेक्ट दोज इंडिविजुअल्स who can run the industries or company smoothly. जिस इंडिविजुअल को वो हायर करेंगे, क्या वो इंडस्ट्री के काम को संभाल सकता है कि नहीं, वो इंडिविजुअल इंडस्ट्री और कंपनी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ लेगा कि नहीं. इट मीन्स दैट ड्यू इंपॉर्टेंस is given to the IQ testing. Dear students, to hire the individuals for company or any industry, number of mental capacities or capabilities are checking. क्या ये mental abilities एक इंडिविजुअल में है कि नहीं? Like critical thinking, यानी कि एक इंडिविजुअल में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होने चाहिए, तब वो इंडस्ट्री के काम को आगे चला सकता है. अपार्ट फ्रॉम द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, लर्निंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एक एम्प्लॉई में होनी चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जैसे कि हम सब जानते हैं, व्हेन द इंडिविजुअल इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर्स. इसीलिए इंडस्ट्रियल वर्कर जो है या एम्प्लॉई जो है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की बुनियाद पे वो इंडस्ट्रियल टास्क्स को परफॉर्म कर सकता है. एक इंडस्ट्रियल और कंपनी वर्कर में क्रिएटिव पोटेंशियल्स होने चाहिए, और क्रिएटिव पोटेंशियल्स की बुनियाद पे वो प्रोग्रेस की तरफ एक कंपनी को ले सकता है. वो न्यू प्लान डिजाइन करेगा. अपार्ट फ्रॉम इट, ड्यू इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द एनालिटिकल पावर्स, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल. अगर एक इंडस्ट्रियल वर्कर के पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं है तो वो कंपनी को प्रोग्रेस के लिए नहीं ले सकता है, एक इंडस्ट्री को डेवलपमेंट की तरफ नहीं ले सकता है. डियर स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री और कंपनी इज बेस्ड ऑन कंपिटेंसी एंड कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. जितने की इंडस्ट्रियल वर्कर्स प्रोग्रेसिव होंगे, जितने की इंडस्ट्रियल वर्कर्स कॉम्पिटेंट होंगे, उतनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल है एक कंपनी और इंडस्ट्री की. अगर इंडस्ट्रियल वर्कर वीक होंगे, उनमें पोटेंशियल नहीं होगा, मेंटल डेवलपमेंट सही नहीं होगी, आईक्यू हाई रेंज में नहीं होगा, वो इंडस्ट्री को फेलियर की तरफ ले सकते हैं रादर देन द सक्सेस. तो नटशेल में हम कह सकते हैं, वी मेजर द आईक्यू in order to hire the individuals for industry or company. Number third,
The government of United States of America used IQ testing to hire individuals in their military. For instance, these tests help us to determine whether one has the necessary aptitude for being an officer or even a soldier at all. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, there is hardly any aspect of the life जहां पर हमें IQ टेस्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर हम मिलिट्री या डिफेंस की बात करेंगे, मच मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द IQ टेस्ट्स, क्योंकि IQ टेस्ट से हम सोल्जर्स में उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट, आई मीन टू से यू मेंटल फैकल्टीज के रिलेटेड जानकारी हासिल कर सकते हैं. इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, IQ tests has given due importance for military purposes. जब भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिक्रूट करने होते हैं इंडिविजुअल्स फॉर डिफरेंट पोस्ट, दे आर गिविंग द ड्यू इंपॉर्टेंस टू द IQ tests. Dear students in United States of America, जब भी उन्हें ऑफिसर की वैकेंसी फिल करनी होती है, ड्यू इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द IQ टेस्ट्स. यानी कि जो इंडिविजुअल ऑफिसर बनने जा रहा है इन डिफेंस, क्या वो डिजर्व करता है, उसका IQ उतना है कि वो मिलिट्री एकेडमी को हैंडल कर सकता है. इसीलिए ड्यू इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द IQ टेस्टिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एज ए ऑफिसर, सोल्जर बनने के लायक एक इंडिविजुअल है कि नहीं, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं, एज पर द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कंसिडर्ड, जंगों में, वॉर्स में सिर्फ डिफीट फिजिकल पावर पे ही नहीं हो गई है, ट्रेनिंग और वेपन पे ही नहीं होती है, बल्कि बहुत से वार जो है उनमें शिकस्त खाने की वजह यह भी हो गई है मेंटल कैपेसिटीज ऑफ सोल्जर्स. क्योंकि वार जो है ये सिर्फ फिजिकल पावर के बुनियाद पे नहीं लड़ा जा सकता है, बल्कि एक दुश्मन को शिकस्त देने के लिए मेंटल कैपेसिटीज, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से हम अपने दुश्मन को डिफीट दे सकते हैं. दैट इज वाई आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड, all the defense round the globe felt the need to select the person for defense purpose, not only keeping in view the physical fitness, but also keeping in view the mental powers. एक इंडिविजुअल मेंटली कितना साउंड है, उसका IQ लेवल कितना है, भले वो फिजिकली फिट भी क्यों ना होगा, अगर वो मेंटली फिट नहीं है तो एक इंडिविजुअल को आर्मी पर्पस के लिए रिक्रूट नहीं किया जा सकता है. नंबर 4, IQ टेस्टिंग कैन हेल्प डॉक्टर्स टू डायग्नोस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, और समटाइम्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब IQ tests to children to understand if they have dyslexia or possesses any learning disabilities. Dear students, जब हम अब मेडिकल प्रिज्म से देखते हैं, IQ टेस्ट्स मेडिकल फील्ड में भी लेंथ एंड ब्रेड्थ कंडक्ट किए जाते हैं. स्पेशली IQ टेस्ट जो है, इट हेल्प्स टू द डॉक्टर्स टू नो द मेंटल प्रॉब्लम्स, आई मीन टू से यू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज पॉसेस्ड बाय एन इंडिविजुअल. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ IQ में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है, किस तरीके से हम इंडिविजुअल्स को ऑन द बेसिस ऑफ IQ क्लासिफाई कर सकते हैं. जिन बच्चों का IQ 0 to 20 होता है, वी कॉल देम इडियट्स. जिन बच्चों का IQ 20 to 50 होता है, वी कॉल देम एम्बिसाइल्स. जिन बच्चों का IQ 50 to 70 होता है, वी कॉल दोज चिल्ड्रन मारून्स.
तो तीनों कैटेगरीज को मिला के वी कॉल देम मेंटली रिटार्टेड, आई मीन टू से यू MR चिल्ड्रन, यानी कि मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जिन बच्चों का IQ 70 के बराबर होता है या लेस देन 70 होता है, वी कॉल देम मेंटली रिटार्टेड और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। तो IQ टेस्टिंग के जरिए हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बारे में पता लगा सकते हैं। Dear students, with the help of IQ testing, we can come to know about the learning disabilities. जिस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी लाइक डिसलेक्सिया है, तो उन बच्चों में रीडिंग डिसऑर्डर पाया जाता है। और ये क्वेश्चन अक्सर बेशतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्पेशली इन नेट एंड सेट एग्जामिनेशन, कि जो डिसलेक्सिया बच्चे हैं उनमें कौन सा डिसऑर्डर होता है। तो इसका एब्सोल्यूट आंसर है रीडिंग डिसऑर्डर। तो अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर अदर लर्निंग डिसेबिलिटीज लाइक डिसकैलकुलिया, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का डिसऑर्डर, डिसग्राफिया यानी कि राइटिंग डिसऑर्डर। दीज आर वेरियस लर्निंग डिसेबिलिटीज। डियर स्टूडेंट्स, नटशल में हम कह सकते हैं मेडिकल फील्ड में IQ टेस्ट्स ब्रॉडरली कंडक्ट किए जाते हैं ताकि डॉक्टर्स को पता चल जाएगा कौन सा बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है और किस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है, या कौन सा बच्चा नॉर्मल या गिफ्टेड है। स्पेशली इन मेडिकल फील्ड IQ tests are conducting to know the intellectually disabled and learning disabled children. Number 5th, IQ tests help us to select a person for particular job or field. For example, selection as computer software engineers, human resources managers, marketing managers, sales representatives. The IQ tests are also used to make selection for intelligence bureau and to detect scientific temper for scientific research. Dear students, we know that the IQ tests are conducted for job purposes. जब भी रिक्रूटमेंट करनी होती है तो रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए ड्यू इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द IQ टेस्ट्स, क्योंकि IQ टेस्ट से पता चलता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस काम के लिए डिजर्व करता है। यानी कि ब्लाइंडली हम एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम एक एम्प्लॉय में मेंटल डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं करेंगे कि इसमें यह काम करने की सलाहियत है कि नहीं। सो दैट इज वाई फॉर रिक्रूटमेंट पर्पसेस ड्यू इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द IQ टेस्ट। फॉर इंस्टेंस, अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सेलेक्ट करने होंगे या मार्केटिंग मैनेजर्स, मैकेनिकल मैनेजर्स या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, या इसके बावजूद भी कोई और पोस्ट होगा, तो हर एक पोस्ट या वैकेंसी फिल करने के लिए, जॉब रिक्रूटमेंट करने के लिए ड्यू इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द IQ टेस्ट्स। अगर हम ब्लाइंडली किसी इंडिविजुअल को पर्टिकुलर पोजीशन पे रखेंगे, अगर वो पोजीशन आई मीन टू से यू वो पोस्ट उसके मेंटल कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज के हिसाब से नहीं होगा, सो इट मीन्स दैट सिस्टम जो है वो कंप्लीटली फेल हो जाएगा। देयर इज नो गारंटी फॉर द ओवरऑल सक्सेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम। इसीलिए जॉब पर्पसेस के लिए, रिक्रूटमेंट पर्पसेस के लिए जब भी किसी इंडिविजुअल को हायर करना होता है तो IQ टेस्ट्स और बाकी इंटेलिजेंस टेस्ट्स को मोर ब्रॉडरली सिग्निफिकेंस दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज में रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए ड्यू इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द IQ
tests. Number 6, IQ tests uncover valuable information about cognitive abilities of the child that assists the teacher in helping the child develop his or her full potential. Dear students, IQ tests की broader applicability ये है. It helps us to uncover the mental capacities and capabilities of the child. अगर हमें चाइल्ड के मेंटल फैकल्टीज के बारे में पता करना है, so we have to conduct the series of intelligence tests, especially the IQ test. IQ टेस्ट से हम अनकवर कर सकते हैं कि बच्चे में कौन सी मेंटल एबिलिटी है और वो मेंटल एबिलिटी कितनी डेवलप्ड है. Dear students, with the help of IQ tests, ये हेल्पफुल बन जाएगा टीचर्स को हाउ टू असिस्ट द लर्नर्स. जैसे कि हम सब जानते हैं, देयर इज वन ऑफ द साइकोलॉजी, दैट साइकोलॉजी इज नोन एज डिफरेंशियल साइकोलॉजी. Differential psychology believes on individual differences. It means there are 5 fingers in the hand and all are not equal. Same is the case with the learner community. हर कोई learner एक जैसा नहीं है. Especially learners differ from one another in terms of cognitive abilities. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है किस तरह से फ्रांस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रॉब्लम हो चुकी थी. उन्होंने पूरे इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया था. यूनिट की हेल्थ भी हर एक लर्नर का 100% सही था, लेकिन उसके बावजूद भी एकेडमिक एक्सीलेंस ऑफ वन लर्नर वेरीज फ्रॉम अनदर लर्नर. कोई लर्नर फर्स्ट पोजीशन में पास हो जाता था, कोई डिस्टिंक्शन होल्डर बनता था, और ऐसे भी लर्नर्स थे जो फेल हो जाते थे. तो फाइनली सिमन एंड बिनेट रीच टू द कंक्लूजन कि देयर इज द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज. हर कोई बच्चा जो है वो मेंटल एज से एक जैसा नहीं है. किसी बच्चे में मेंटल एज, मेंटल मैच्योरिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा है और किसी बच्चे में मेंटल एज जो है वो कम है. आई मीन टू से यू कॉग्निटिव मैच्योरिटी कम है. एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन देयर इज द डिफरेंस ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस और एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ वन चाइल्ड टू द अनदर चाइल्ड. हमें हर एक लर्नर को एजुकेशन देनी है, लेकिन हम एक जैसी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं. जैसे कि हमने पहले ही पॉइंट पे ऑलरेडी डिस्कस किया है, एजुकेशन इज द बर्थ राइट, बट वी आर गिविंग द एजुकेशन एज पर वनस ओन कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज. अगर किसी बच्चे को 5 kg उठाने की सलाहियत है तो हम उसे नहीं कह सकते आप 10 kg उठाओ. अगर किसी बच्चे में 20 kg उठाने की सलाहियत है तो हम उसे नहीं कह सकते हैं कि आप सिर्फ 15 kg उठाओ या 40 kg उठाओ. इट मीन्स दैट वी हैव टू impart the education keeping in view the mental capacities. हर कोई लर्नर जो है वो मेंटल कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज से मुख्तलिफ है. तो IQ टेस्ट से हम बच्चों को क्लासिफाई कर सकते हैं, और जब हमें IQ टेस्ट से पता चल जाएगा कि किस लर्नर में कितनी मेंटल एबिलिटी और कितनी मेंटल कैपेसिटी है, तो अकॉर्डिंगली इट विल बिकम हेल्पफुल फॉर द टीचर्स दैट टू असिस्ट और प्रॉपरली गाइड टू द लर्नर्स. डियर स्टूडेंट्स, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, वहाँ पर किसी बच्चे को वो रैंडमली पर्टिकुलर कोर्स के लिए सिलेक्ट नहीं करते हैं. They are giving due importance to the IQ tests and aptitude tests. उनका जो बच्चा होता है वो बाई चॉइस एक फील्ड में होता है.
बट इट इज अनफॉर्चुनेट टू आवर सिस्टम। हमारे बच्चे जो होते हैं वो अधिकतर बाई चांस सिस्टम में होते हैं। हमारे बच्चे को 20-25 साल के बाद पता चलता है कि मुझ में कितनी कैपेसिटी थी और मुझ में कौन सा एप्टीट्यूड था, तो तब तक एक टाइम भी वेस्ट हो चुका होता है, एनर्जी और मनी भी। इसीलिए ड्यू इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू द IQ टेस्ट। प्राइमरी लेवल ही से हमें IQ टेस्ट कंडक्ट करने चाहिए, एटीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करने चाहिए, एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करने चाहिए, सो दैट वी विल कम टू नो ओवरऑल पावर्स ऑफ द इंडिविजुअल। हमें हर एक बच्चे के टेस्ट्स के बारे में पता चल जाएगा, एप्टीट्यूड के बारे में पता चल जाएगा, इंटरेस्ट्स के बारे में, या ओवरऑल कॉग्निटिव प्रोफाइल। सो नटशेल में हम कह सकते हैं IQ टेस्ट्स हैव मच मोर सिग्निफिकेंस इन एवरी वॉक ऑफ द लाइफ। शायद ही कोई ऐसा फील्ड होगा जहां पर IQ टेस्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। Dear students, this was all about the today's lecture. तो नेक्स्ट लेक्चर में we will discuss about the other important intelligence tests. Particularly नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम फोकस करेंगे वर्बल टेस्ट्स एंड नॉन वर्बल टेस्ट्स, और जो भी वर्बल टेस्ट्स और नॉन वर्बल टेस्ट्स के सब टेस्ट्स हैं वी विल ड्यूली डिस्कस दोज, लाइक इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट्स, ग्रुप वर्बल टेस्ट्स। इसी तरीके से बाकी जो कॉन्सेप्ट्स है या सब टेस्ट्स हैं related to verbal and non-verbal intelligence tests. Hopefully in next lecture we will discuss that. This was all about the today's lecture. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.